ایک سائیکیٹرسٹ سے سیشن کرواتے رہے ہیں، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی، تو اب کیوں؟ عمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر آپ نانو سے بات نہ کریں، ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی ہوگا۔ سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ سیشن ہوں گے تو تم پھر ٹھیک ہو جاؤ گی، عمر نے اسے تسلی دی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، وہ سر پکڑ کر دبی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ آپ سمجھتے نہیں، میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، میں ٹینشن میں تھی، اسی لیے ایسا ہوا۔ اب میں ریلیکس ہونے کی کوشش کروں گی تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ نانو اور نانا فضول میں پریشان ہوں گے، مجھے بھی ڈسٹرب کریں گے، میں بھی اپنے پیپرز پر توجہ نہیں دے پاؤں گی، پلیز آپ ان کو کچھ مت بتائیں۔ اس کے لہجے میں اتنی بے چارگی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اسے یکدم علیزہ کے چہرے پر اطمینان نظر آیا۔ تھینک یو، اس نے بے اختیار عمر سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ علیزہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلے کچھ دن عمر رات کو خود لاؤنج لاک کرتا رہا تھا اور سونے سے پہلے باہر کا بھی ایک چکر لگا لیتا تھا۔ پھر علیزہ کے کمرے کے ہینڈل بہت آہستگی سے گھما کر چیک کرتا۔ دروازہ ہمیشہ ہی اسے لاکڈ ہی ملا۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ علیزہ نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا اور اس رات کا واقعہ واقعی وقتی ٹینشن کا نتیجہ تھا، مگر یہ اطمینان زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہا تھا۔ اس رات وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے رات کے پچھلے پہر گھر میں مدھم شور سنا۔ کچھ چونک کر اس نے غور سے شور کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ چیخوں کی آواز تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے سے نکل آیا۔ چیخوں کی آواز علیزہ کی تھی اور اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عمر بے اختیار بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک تھا اور اندر سے وہ کچھ کہتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ عمر نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ علیزہ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے عمر کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح چیخ رہی تھی۔ عمر کی سراسیمگی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے کو پیٹا۔ علیزہ، دروازہ کھولو، فار گاڈ سیک دروازہ کھولو، اندر کیا ہو رہا ہے؟ علیزہ! اس بار اندر یکدم خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی نے عمر کے اضطراب میں اور اضافہ کیا تھا۔ علیزہ، علیزہ، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہتے ہوئے دروازہ بجایا اور تبھی اس نے نانو اور نانا کو تیز رفتاری سے آگے پیچھے آتے دیکھا۔ گرینی، علیزہ ابھی کچھ دیر پہلے اندر چیخ رہی تھی، پتہ نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ عمر نے اضطراب کے عالم میں نانو سے کہا۔ ان کے چہرے پر بھی تشویش تھی، مگر وہ عمر کی طرح گھبرائی نہیں تھی۔ دوبارہ ڈر گئی ہوگی، انہوں نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ عمر نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ دوبارہ ڈر گئی؟ کس چیز سے ڈر گئی؟ نانا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ پریشان مت ہو، وہ نیند میں ڈر جاتی ہے۔ عمر ساکت کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بھی اب نانو کے ساتھ مل کر دروازہ بجا رہے تھے۔ علیزہ، لائٹ جلاؤ، میری جان، دروازہ کھولو، گھبراؤ مت۔ نانو اب اسے ہدایات دے رہی تھیں۔ چند منٹوں بعد عمر نے دروازے کی جھری سے کمرے میں روشنی ہوتے دیکھی۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ علیزہ کا رنگ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو پسینے سے بھیگا ہوا دیکھا۔ نانو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اسے ساتھ لپٹائے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ نانا بھی کمرے کے اندر چلے گئے، لیکن عمر اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ تم ذہن پر اس چیز کو سوار مت کرو، اس کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہ کر آتی ہے تو پھر اسی طرح ڈر جاتی ہے۔
या फिर नींद में चलने लगती है। तुम अगर पहले मुझे उस रात के बारे में बता देते तो मैं मोहतात हो जाती और उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। अगली शाम उमर नानो के साथ अलीज़ा का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। उसने उन्हें उस रात अलीज़ा के बाहर जाने के बारे में बता दिया था और उसके पूछने पर नानो ने उसे अलीज़ा के प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया। साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि इनसिक्योरिटी के एहसास की वजह से ऐसा होता है। वो खुद को महसूस नहीं करती और पेरेंट्स के मिलने के बाद ये एहसास और भी ज़्यादा हो जाता है और पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। वो पेरेंट्स से मिलकर आती है, उसके बाद अगले 2-3 माह इसी तरह डिस्टर्ब रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट की हिदायत है कि पेरेंट्स के पास ना जाने दें, कम से कम 1 साल तक उनके पास रहने के लिए ना भेजें और फिर देखें कि वो कैसे बिहेव करती है। लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती कि वो अपने माँ या बाप के राब्ते करते ही उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर कल रात तो वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। आपने उसकी हालत देखी? वो तो अब चंद दिन में उसके पास सोऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी और कल दोबारा उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। नानू ने उसे बताया, ग्रैनी आप साइकियाट्रिस्ट बदल दें। अगर इतने सालों में ये साइकियाट्रिस्ट इसका इलाज नहीं कर सका तो कोई दूसरा साइकियाट्रिस्ट देखें। साइकियाट्रिस्ट बदलने से क्या होगा? हो सकता है कोई दूसरा साइकियाट्रिस्ट उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करे। मैंने तुम्हें बताया है ना, उसे ये प्रॉब्लम सिर्फ चंद माह ही होता है, वो भी जब वो अपने पेरेंट्स से मिलकर आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती है। मगर ग्रैनी उन 2-3 माह में ही उसे कोई नुकसान भी तो पहुंच सकता है। मैंने आपको बताया था कि उस रात वो बाहर गेट तक पहुंच गई थी और उसे बिल्कुल पता ही नहीं था। अगर इसी तरह नींद की हालत में उसने कुछ और कर लिया तो? उमर वाकई फिक्रमंद था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे किस किस्म का आदम तहफ़्फ़ुज़ है, कैसी प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने उसे हर चीज़ तो दे रखी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ग्रैनी, चीज़ें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। वो अपने वालिदैन को मिस करती है। आप वालिदैन की कमी को चीज़ों से पूरा नहीं कर सकती। उमर ने संजीदगी से कहा, ठीक है कि उसके वालिदैन उसके पास नहीं हैं, मगर फिर भी वो दोनों जिस तरह से उसका ख्याल रखते हैं बहुत कम लोग ही रखते होंगे। हर साल समीना छुट्टियों में उसे अपने पास बुलवा लेती है। बाप से हर साल ना सही मगर वो 2-3 साल बाद मिलती ही रहती है। दोनों बाकायदगी से उसे फ़ोन करते रहते हैं। हर आने जाने वाले के हाथ उसके लिए कुछ न कुछ भिजवाते रहते हैं। हर माह उसके अखराजात के लिए जो रकम भिजवाते हैं वो अलग है। फिर मैं हूँ, उसकी नाना है। जितनी देखभाल हम लोग करते हैं शायद ही कोई करता होगा। फिर भी उसे इनसिक्योरिटी का एहसास है, फिर भी उसे प्रोटेक्शन चाहिए। और क्या दिया जा सकता है उसे? इसके अलावा भी तो फैमिली में बहुत से बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने तो ऐसी चीजें अपने अंदर डेवलप नहीं की। तुम भी तो हो, तुम्हारे पेरेंट्स में भी तो डिवोर्स हो गई थी। कितने सालों से तुम भी तो बोर्डिंग में रहते आ रहे हो, तुमने भी तो सब कुछ संभाला है ना। नानू ने उसके सामने अपने दिली जज्बात का इजहार किया। ये सब इतना आसान नहीं है ग्रैनी, उमर ने मध्यम आवाज में कहा। ये चीज हमेशा तकलीफ देती है। नानू चंद लम्हे तक उसको देखती रही। मैं जानती हूं ये तकलीफ दे है, मगर तुमने तो इस चीज को अपने आसाब पर सवार नहीं किया। मैं चाहती हूं कि वो भी उसे लाइटली ले, अपने और दूसरों के लिए मसले ना खड़े करे। मैंने उसकी परवरिश में बहुत मेहनत की है और उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी कितनी ही मसरूफियात उसकी खातिर ख़त्म कर दी। अब इस किस्म की बातें मुझे कितना टेंस करती हैं उसे अंदाज़ा ही नहीं है। नानू बहुत शाकी नज़र आ रही थी। ग्रैनी, वो जानबूझकर ये सब नहीं करती, ये उसके अपने हाथ में नहीं है। मैं जानती हूँ वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती, मगर वो खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों चीज़ों को अपने आसाब पर इतना सवार कर लेती है? तुमने गौर किया है, जब से वो कराची से होकर आई है उस वक्त से वो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई है। किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। हर साल ऐसा ही होता है। समीना के पास रहकर आए तब भी यही कुछ होता है।
तो फिर आप उसे वहां जाने से रोक दिया करें। मैं कैसे रोकूं? वो खुद वहां जाना चाहती है और जाहिर है समीना के पास जाने से उसे नहीं रोक सकती, तो फिर उसके बाप के पास जाने से कैसे रोकूं? ग्रैनी, चले छोड़े, कोई और बात करते हैं। उमर ने उन्हें ज्यादा फिक्रमंद देखते हुए बात का मौजू बदलने की कोशिश की थी। बस अलीजा ए लेवल्स कर ले तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उमर उनकी इस बात पर कुछ हैरान हुआ था। आपकी जिम्मेदारी खत्म कैसे होगी? उसका बाप अब उसकी शादी करना चाहता है। इस बार वापस जाने से पहले उसने इस सिलसिले में मुझसे बात की थी। अलीजा की शादी? उमर जैसे चिल्ला ही उठा। नानो ने उसे हैरानी से देखा। अमर बेल, बाब 15। अलीजा उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेना चाहती थी, मगर वो कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उमर सेफ्टी कैच हटा चुका था और रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी की तरफ ले जा रहा था जब अंकल जहांगीर बिजली की सी तेजी से लपके और उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो अपना हाथ छुड़ाता, उन्होंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि वो न सिर्फ चंद कदम पीछे चला गया, बल्कि रिवॉल्वर पर उसके हाथ की गिरफ्त भी कमजोर पड़ गई। अंकल जहांगीर ने एक झटके के साथ रिवॉल्वर उससे छीन लिया और उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। अलीसा ने उसकी नाक में से खून बहते देखा। अंकल जहांगीर अब उसे गालियां दे रहे थे। नानो ने यकदम आगे बढ़कर उन्हें पीछे खींच लिया। उमर अब सामने खड़ा पलकें झपकाए बगैर उन्हें देख रहा था। अलीजा ने कभी किसी के लिए उसकी आंखों में इतनी नफरत नहीं देखी थी जितनी वो इस वक्त उमर की आंखों में अंकल जहांगीर के लिए देख रही थी। उसकी नाक से टपकता हुआ खून उसकी सफेद शर्ट पर गिर रहा था, मगर वो जैसे उससे बिल्कुल बेखबर था। मुझ पर चिल्लाए मत, उसने अब उमर को अंकल जहांगीर से कहते सुना। मुझ पर अब हाथ उठाकर बहुत पछताएंगे। क्या करोगे तुम? ये ड्रामा जो अभी किया है, खुदकुशी करना चाहते हो तो जाओ, बाहर सड़क पर जाकर करो, वहां जाकर शूट करो अपने आप को, लेकिन मेरे घर में नहीं। नहीं, वैसे ही मरूंगा जैसे मरना चाहता हूं। उससे क्या होगा? मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4-6 दिन लोग बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जहांगीर मास को कुछ भी नहीं होगा। 4-6 दिन ही सही, मगर बात तो करेंगे आपके बारे में। इससे पहले कि अंकल जहांगीर उसकी बात के जवाब में कुछ कहते, नानो ने उन्हें कहा था, जहांगीर बस करो, इस बहस को बंद करो, यहां से बाहर निकलो। उन्होंने अंकल जहांगीर को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे यहां से बाहर नहीं जाना। क्या समझता है ये खुद को? मैं ऐसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। उन्होंने खुद को नानो से छुड़ाते हुए कहा था। प्लीज जहांगीर, फिलहाल ये सब खत्म करो, मुझे इस तरह परेशान मत करो, अभी इसे अकेला छोड़ दो। नानो ने एक बार फिर उनका बाजू पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में कहा था, लेकिन अंकल जहांगीर बिल्कुल ही बिफरे हुए थे। आप इसको नहीं जानती हैं, ये तमाशा इसने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी 2 बार इसी तरह ये लड़ने के बाद स्लीपिंग पिल्स खा चुका है। उन्होंने इंकिशाफ किया। अलीसा ने शौक के आलम में उमर को देखा। वो अब भी उसी तरह बाप पर नजरें जमाए हुए था। मुझे शर्म आती है इसे अपनी औलाद कहते हुए। आपको बाप कहते हुए मुझे भी उतनी ही शर्म आती है, उसने अंकल जहांगीर को सर्द लहजे में जवाब दिया। जहांगीर, खुदा के लिए दोबारा झगड़ा शुरू मत करो, मेरे साथ बाहर आओ। नानो ने अंकल जहांगीर के कुछ कहने से पहले ही उन्हें बाहर खींचना शुरू कर दिया। अंकल कुछ कहना चाहते थे, मगर नानो किसी न किसी तरह उन्हें खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। उमर अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा उन्हें बाहर जाते देखता रहा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसकी नजरें अलीजा पर जम गईं। तुम भी यहां से जाओ, उसने दरश्ती से अलीजा से कहा था। वो अब हाथ की पुश्त से नाक साफ कर रहा था और शायद तब ही उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी नाक से खून बह रहा है। अलीजा उसके कहने के बावजूद भी अपनी जगह से नहीं हिली। उमर ने एक बार फिर सर उठाकर उसे देखा और उसे वहीं खड़े देखकर उसके चेहरे की नागवारी बढ़ गई। तुम्हें कहा है ना, जाओ यहां से। इस बार उसने भर्राई हुई आवाज में अलीजा से कहा, प्लीज मैं आपके पास रहना चाहती हूँ,
اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کسی بھی قیمت پر عمر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ علیزہ، مجھے اس وقت یہ کمرہ بالکل خالی چاہیے، میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ، اس نے تیز اور ترش لہجے میں اس سے کہا، اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ عمر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔